अस्सलामुअलैकुम कनाडा, अस्सलामुअलैकुम अमेरिका। वो कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी हाज़िर खिदमत है। पिछले दिनों पूरी दुनिया में मादरी ज़ुबान का दिन मनाया गया और टोरंटो में सिंधी अदबी संगत और सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया। जुल्फ़कार अली शेख ने हमें इस तकरीब की झलकियाँ भेजी हैं। आइए प्रोग्राम के आगाज़ में इस तकरीब में पहुँचते हैं। Thank you all of you for coming here and joining International Mother Tongue Day with us. खास तौर ते असां माउरनि ते इहा ज़िमेदारी वधीक आहे थिए थी त पंहिंजी ॿोली खे बचाइण लाइ पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी में ॻाल्हायूं ऐं पंहिंजी सकाफ़त सां ॿारनि खे ॻंढे रखूं। Indus Valley Civilization da uthi jaag nindra na kaje etri sultani suhag nindra that was colorful. He loved to sing and dance just like the rest of us Sindhis. Jiyam English mein 26 letters in tiya Sindhi mein 52 letters kare na mile. Sorry ma yo ajmal hai mujhe sajo yaad. But they okay bhai Sindhi ghar wani galayo inake represent karan lai shah jo bhi sher aahe sutars hare ma tanki yo aakhir mein thank you again for listening. So speaking with your children in the home is the best, it's the most important, but equally important for staving off long-term, like 100 years into the future, staving off long-term possibilities of language loss will involve introduction of monolingual education, teaching children in Sindhi in schools, if possible. One of the important features of the cultural identity is the ability to speak one's mother tongue. The language is the reflection of your culture, your history, your civilization. But what happened in Sindh, that all three things, I believe, were misinterpreted and misunderstood by the new generations. Sindhi language, Sindhi people, Sindhi culture, Sindhi civilization holds the hallmark of all the cultures, all the civilizations of the world. पाकिस्तान में जैसे पहले जिक्र हुआ इलाकाई ज़ुबानों का क्या हाल है, मेरा नहीं ख्याल, मेरे इल्म में नहीं है कि सिंध के अलावा कहीं पर भी निसाब का हिस्सा है कोई ज़ुबान। ये सिंध में किस तरह कायम कर ली सलाम करती हूँ मैं आप लोगों को कि अभी भी सिंध एक वाहिद है सूबा जहाँ पर एक मुकामी या इलाकाई या लोगों की जो एक नेशनल लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है। This August gathering resolves and demands from the legislative assemblies of the government of Pakistan to award the due status of national language to Sindhi with concrete efforts of its development at all levels. Do you agree? Thank you. My another resolution is that this August gathering resolves and demands from the government of Pakistan as well as from the government of province of Sindh to take all out effort to implement the law of teaching Sindhi as a separate subject in all the non-Sindhi medium schools of the province. Do you agree? सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध कमण जा नारा 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 जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन जिए सिंध वारा जियन सिंध नाजरीन, कुछ लोगों का ख्याल है
कि हम दुनिया के जिस हिस्से में रह रहे हैं वहाँ मज़हब और रंग की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। हम पर भी फ़र्ज़ होता है कि हम अपने किरदार और अखलाक की बुनियाद पर साबित करें कि हम अच्छे कैनेडियन मुसलमान हैं, अमेरिकन मुसलमान हैं। क्या कलर या रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद बनता है या नहीं, और क्या ये इंसानियत पर भी असरअंदाज होता है? ये है आज का सवाल, जिसका जवाब हासिल करेंगे अपने कम्युनिटी एनालिस्ट आमिर कुरैशी से। बदर साहब, lot of people say that in Canada there is no discrimination, but I would say I'm sorry, I'm afraid that there is a discrimination. हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन है, और बल्कि मैं ये कहूँगा कई घर में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। कई बार आप एक कम्युनिटी में बैठे हों उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो आई वुड से एवरीवेयर। अगर आप 6 दोस्त बैठे हैं जिसमें 3 मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं, सिख हैं, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, या डिस्क्रिमिनेशन को हाउ वी कैन रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, आई वुड से यू कैन नॉट रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, यस यू कैन मिनिमाइज द डिस्क्रिमिनेशन। उसमें ये है कि आपका जो वाकई जो आपका इखलाक है, जो आपकी हम्बलनेस है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो दैट रिमूव या मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आपने अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करना है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। अगर आप एज ए ह्यूमन पहले अपने आप को प्रेजेंट करें, उसके बाद अपने रिलीजन को प्रेजेंट करें, तो उस तरह ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप वी गना गो एंड वी कैन मिनिमाइज द ये डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म। तो ये है कि अगर हम मिलजुल कर, और डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली अगर हम हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यस होगी, है, ज़रूर है, इसको हम अपनी यूनिटी से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हम एज ए यूनिट के तौर पर आएँ। हम अपना तारफ़ कभी हम करवा रहे हैं बलूचिस्तान से, मैं सिंधी हूँ, मैं कराची से, हम कहें हम पाकिस्तान से हैं, मैं उस फलां फ़िरके से हूँ, हम पाकिस्तान से। अगर हम इस कम्युनिटी को कनाडा में अपना तारफ़ एज ए पाकिस्तानी मुस्लिम करवाएंगे और एज ए यूनिट के तौर पर हम अपने आप को एज ए यूनिटी के तौर पर प्रेजेंट करेंगे, तो नो वे कि हम जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो, और लोग हमें अच्छी नज़र से देखेंगे, और वो भी कहेंगे यस these Pakistani Muslims, they are contributing in Canada, yes they are working in a welfare, in this welfare society, फूड बैंक में जाते हैं। जैसे मैंने आपका भी सुना है बदर साहब, आप भी माशाल्लाह काफ़ी कम्युनिटी में एंटर हैं और आपने देखी होगी कम्युनिटी, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका इखलाक है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपकी हम्बलनेस है, उसको आपने प्रेजेंट करके, तो लोग ये नहीं कहेंगे वो ये तो पाकिस्तानी मुस्लिम, वो कहेंगे Mr. Badr is a very nice person. So that's the way we can minimize the discrimination. मैं ये कहूँगा डिस्क्रिमिनेशन है, रहेगी, और ये होती है, ये एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अपने प्यार, इखलाक और भाईचारे से और यूनिटी से हम इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे। और इंशाल्लाह, और इस कोई दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो तरक्की ना करे, और मैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट 5 इयर्स में देखेंगे हमारी नई जनरेशन आ रही है, और हमारी जो तरक्की है वो स्टेप बाय स्टेप अब वो बढ़ती जाएगी। टोरंटो से 30-40 मिनट की मुसाफत पर वाक़े वाटरलू के नाम से खूबसूरत शहर आबाद है, जो सारी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की वजह से जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और दूसरे तालीमी अदारों में हर साल 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स इस शहर की रौनक बनते हैं। सिटी ऑफ वाटरलू की कुछ झलकियाँ मुलाहजा कीजिए और उसके बाद वहाँ के एक प्रोजेक्ट का तारफ़ देखिए।
is My K2. The two towers will emerge on King Street between vibrant uptown and two world-renowned universities. K2 will offer 185 stylish suites and soar 21 stories above a 2-story podium to become one of the tallest condos in the area. From the moment you step inside, the inviting lobby welcomes you home. With its expansive walls of glass and modern design, it's the ideal spot to lounge or meet up with friends. On the second floor of the podium, you'll find all the amenities you want to stay active and social, like a fully equipped fitness facility, party room with kitchen, multi-function room, game room, theater room, saunas, and an outdoor terrace with a barbecue. If you want to enjoy the outdoors, Waterloo Park is the perfect place. When you're ready to hit the town, a spectacular street scene awaits you. Browse the shops in Uptown, just a few blocks away. Then meet up with friends at a pub or cafe near the universities. When the sun goes down, the bright lights will entice you to stay out late. You're a short walk to nightclubs and trendy restaurants. You're also a short walk to the universities. Wilfrid Laurier is 3 minutes away, and it's just 15 minutes to the University of Waterloo. If you want a short commute to work, world-leading companies surround you. This area has a dynamic culture for innovation and entrepreneurship. This is My K2. A premier place to live, a smart place to invest. प्रोग्राम में कुछ दिलचस्प रिपोर्टें बाकी हैं, हमारे साथ रहिएगा। छोटे से कमर्शियल वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। लेकिन हम मुहाजिर का जो दायरा है उसके अंदर ही मौजूद हैं, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, या कोई कुव्वतें हैं जो आप लोगों नाजरीन, MQM के मरकज़ी रहनुमा फ़ारूक सत्तार गुज़िश्ता दिनों कनाडा के दौरे पर थे। मैंने उनका जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था वो गुज़िश्ता प्रोग्राम में शामिल किया गया। उसमें कुछ हिस्से नशर नहीं हो सके थे, वो आज देखते हैं। लेकिन हम मुहाजिर का जो दायरा है उसके अंदर ही मौजूद हैं, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, या कोई कुव्वतें हैं जो आप लोगों को वो उस दायरे में धकेल रही। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का क़याम जुलाई 1997 में जो है वो हुआ, क़याम अमल में आया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि उस वक्त से लेकर आज तक हमारे किसी लिटरेचर में, हमारे जलसों में और इंतखाबी जलसों में हमने कहीं महाजर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा हम नए सिंधी हैं या सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले सिंधी। लेकिन जो गुज़िश्ता 5 सालों में सिंध के शहरी इलाक़ों के अवाम को एक मनसूबा बंदी के तहत जिस तरह दीवार से लगाया गया, सिंध की मकामी, कराची के, हैदराबाद के, सक्खर के मकामी इदारों में भी मुलाजमतों के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए। 10,000 पुलिस में अगर लोग भर्ती किए गए कराची से, तो वो लियाकताबाद और नाज़माबाद से नहीं किए गए, मलीर से और लियारी के इलाके से किए गए। तो मुझे मलीर के, लियारी के इलाकों से कोई बुग़्ज़ नहीं, मेरे भाई हैं, मासूम सादा आवाम हैं। लेकिन अगर मेरा कोटा भी उनको दे दिया गया, ये जायज़ हक, मैं नहीं कहता कि मेरे कारकुन को नौकरियां दें, लेकिन लियाकताबाद, नाज़माबाद, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी, वहाँ के लोगों का भी हक़ है। अगर कराची के डोमिसाइल पे नौकरियां हो रही हैं और वो भी ज़्यादा लियारी और मलीर के लोगों की होगी, तो फिर लियाकताबाद के अंदर एहसास महरूमी पैदा होगा, कोरंगी में एहसास महरूमी पैदा होगा। फिर कराची की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी 47 से लेकर आज तक कराची की बिल्डिंग अथॉरिटी थी, वो एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दी, और जो आमदनी कराची से होती है उसे आप कहीं और ले जाके खर्च करते हैं, और फिर अफसरान कहीं और के लाके कराची में पोस्ट करते हैं। इससे आपस में एक जो हमआहंगी पैदा करने की जो हमने 20 सालों से कोशिश की थी अल्ताफ़ भाई ने, उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वालों में, उसको दानिस्ता नादानिस्ता हमारे पीपल्स पार्टी के जो
जो हुकूमत में जो हुक्मरान हैं वो एक ऐसा अमल कर रहे हैं जिससे शहरी इलाकों में लोग दीवार से लग रहे हैं। तो एक लाशऊर में एक उनके भी एक महाजर शनाख्त है, वो आ जाती है कि शायद इस बुनियाद पे हमारे साथ कि हम फर्जंद ज़मीन नहीं हैं, इसलिए हमें दीवार से लगाया जा रहा है। लेकिन आज मेरे एक सेनेटर पंजाबी स्पीकिंग है 7 में से, पहले 7 में से 2 थे, कर्नल ताहिर मशदी पंजाबी स्पीकिंग है, तो हम तो 7 में से एक, मेरे एक MNA पंजाबी स्पीकिंग है, कराची से जीते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूट, लेकिन वो पंजाबी। इसी तरह मेरा एक MPA सिंधी स्पीकिंग है, सिंधी है बल्कि, एक हज़ारेवाल है शायद, और एक बलोच है। तो अब तो हम प्रैक्टिकली मुत्तहदा हैं। मेरे MPAs जो हैं वो सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, पश्तो बोलने वाले हैं, पंजाबी हैं। मेरे टाउन के नाज़मीन जो हैं वो पख्तून होते थे, पंजाबी होते थे जब मकामी हुकूमत थी। तो हमने तो पाकिस्तान के तमाम मजलूमों के लिए अपने दरवाजे खोले। फिर देखें, ये लसानियत की बात आती है, शनाख्त की बात ही है ना, या ज़्यादा देखें, अगर कोई शख्स अपने आप को कहे कि मैं पख्तून हूँ तो कहा जाता है ये कौमियत है, पंजाबी हूँ तो कहा जाता है कौमियत है। और कोई शख्स जो ना पख्तून है, ना पंजाबी है, ना बलोच है, ना उस तरह का सिंधी है, सिंधी बोलने वाला सिंधी नहीं है, वो अगर अपने आप को कह दे कि मैं महाजिर हूँ तो लसानियत आ जाती है। तो बाकी सारी कौमियतें हो गई, ये लसानियत हो गई। तो मैं फिर भी इस बहस में नहीं जाना चाहता। हम अपने आप को अब भी कहते हैं कि हम नए सिंधी हैं, उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, लेकिन जो हमारे सिंध के दानिश्वर हैं, सिंधी बोलने वाले, जो सिंधी ज़बान की खिदमत करते हैं और जो शाह लतीफ़ के मोहब्बत का, अमन का, प्यार के पैगाम का प्रचार करते हैं, मैं ये कहूँगा वो भी थोड़ा सा उर्दू बोलने वाले सिंधियों के मसाइब को उजागर करें अपनी तहरीरों में। वो कराची, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास के जो शहरी इलाक़ों में जो लोग हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, जो उनका एहसास महरूमी है, उसको भी उजागर करें। मैं ये भी कहता हूँ कि जो मेरे सिंधी बोलने वाले भाई हैं उनको भी, और सूबा सिंध को भी शायद उसका पूरा हक़ नहीं मिला। हम तो सूबा खुद मुख्तारी की बात करते हैं, हम तो तमाम पाकिस्तान के सूबों को चाहते हैं कि उनको खुद मुख्तारी मिले। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यही चाहते थे। अल्लाह करे सब पाकिस्तानी हों और जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं हम उनसे बाहर निकलें, पाकिस्तान को मजबूत करें। बड़ी अच्छी उम्मीद और नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान के लिए। नाजरीन, कनाडा में किसी तरफ चले जाएं, किसी सिमत का रुख कर लें, इसके खूबसूरत नज़ारे हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देते हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग के लिए टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर और कनाडा के कई शहरों का इंतखाब किया गया। बॉलीवुड की एक मूवी है किस्मत कनेक्शन, इसकी शूटिंग भी कनाडा में हुई। इसका एक गीत देखते हैं जिसमें टोरंटो के खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं। आप हमें ईमेल करके बताइएगा कि इसमें टोरंटो की किस किस जगह को फिल्माया गया है। आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुकामात हमें बताए तो हम आपको इनाम भी देंगे और अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट भी करेंगे। आइए ये गीत देखते हैं। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो, हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह, तुम ही हो ये जहाँ, तुम ही हो वो जहाँ, तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमियाँ, तुम ही हो बेशुमार, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो। किस तरह ये कितना तुम्हें हम चाहते हैं, साया
ही हो बेशुबा, तुम ही हो मुझ में है, तुम ही हो। कैसे बताएं तुम्हें लम्स वो सारे जिस्म को जो महकाते हैं। इफ्तिदा तुम ही हो, इंतहा तुम ही हो, तुम हो जीने का मकसद और वजह तुम ही हो। ये था आज का प्रोग्राम। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है oc.badr@gmail.com। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।